ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅਨੋਖਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਹੈ ਧੋਖਾ। मतलब ता है बाकी जग सारा, शुक्राना मालिक तेरा शुक्राना। तो संगत जी, आपको भी ऐसा ही लगता है ना कि इस जग के सारे रिश्ते झूठे हैं, फरेबी हैं, पर गुरुआं दी संगतां दा ये प्यार बहुत ही अनोखा है। जो संगत परिवार गुरु जी ने हमें बख्शा है, ये सबसे प्यारा है। यहाँ हम सब अपने दुख सुख सब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और ये नहीं सोचते कि कोई हमें जज करेगा। तो चलिए संगत जी, अपने मालिक का शुक्राना करते हैं आज का ये सत्संग सुनकर। सत्संग को सुनने से पहले आप वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें संगत जी, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके घर परिवार पर बरसती रहें। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए संगत जी, हाथ जोड़कर अपने प्यारे गुरु जी का महामंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं गुरु जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਛੋਟਾ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम शुकराना गुरु जी। मैं अपनी बेटी ਲਈ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕੁੜੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਛੋਟਾ ਸਾ ਨੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਫੂਲ ਖਿਲਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਖਿਲਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਫੁੱਲ ਖਿਲਣੇ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਗਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਬਸ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚੀ ਦੇ। ਪਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਆ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਹੋਈ ਨੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੈਗਾ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ। ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ
ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੇਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਸ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਛ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਔਰ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬਸ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਬਸ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਦੇ ਘਰੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਆਪੇ ਦੇਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਆ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ, ਦੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਤਸੰਗ ਵਿਰਾਮ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਫਿਰ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। जय गुरु जी आंटी जी। चलिए संगत जी, अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। आज मैं गुरु जी से क्या कहूँ, उन्होंने मेरा इतना साथ दिया है कि मैं अगर लाख बार भी उनका धन्यवाद करूँ तो क्या करूँ, मैं उनको नहीं बोल पाती। लोगों ने तो बहुत कोशिश की कि मैं पूजा पाठ छोड़ दूँ, और मेरे कामों में इतना बिगड़ डाला कि मैं फिर भी मैंने हौसला नहीं छोड़ा। क्या पता गुरु जी की शक्ति थी वो मेरे साथ। उन्होंने मेरे बच्चे को तक नहीं छोड़ा, उनको हमेशा कष्ट दिया। उन्होंने कहा था कि मैं तेरे बच्चों की रक्षा करूँगा और तेरे पति की भी। मेरे पति मेरी बात नहीं सुनते हैं, अभी भी उनका बहुत ज़्यादा गुस्सा है। मैंने जैसा उन्होंने बताया था मैंने वैसा कर दिया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। मैंने कैसे भी करके उनको रक्षा सूत्र पहना दिया है, धागा नहीं था, लेकिन तब भी मैंने घर में ही बनाकर पहना दिया। अगर सच्ची श्रद्धा हो तो हम भगवान को भी पा सकते हैं। तो काम तो क्या, काम का तो क्या ही है। गुरु जी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी है कि मेरी खुशी का ठिकाना है, लेकिन मैं अपनी खुशी को जाहिर नहीं करती हूँ, क्योंकि लोगों की अभी भी मेरे ऊपर नज़र है। वो तो देखते कि कब ये मरे, लेकिन जिस पर भगवान जी का हाथ है उसको कोई नहीं मिटा सकता।
भगवान की शक्ति है जो मुझे काम करने के लिए प्रेरित कर रही है। मेरी ब्रेस्ट में बहुत पेन हो रहा था, और कल तो मेरे को सिर में इतना दर्द था कि ऐसा लग रहा था मेरी आंखें ही बाहर को निकल आएंगी। सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को ऐसा लगता था जैसे मेरे सिर में मेरे को 2 बार चोटें लग चुकी हैं पीछे दिमाग पर। उसमें एक मतलब क्लॉटिंग सी हो गई है। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को कोई ना कोई बीमारी ज़रूर है। मेरे को कल इतना दर्द था कि मैं क्या कहूँ। मेरे को ऐसा लग रहा था मेरी आंखें बाहर को आ जाएंगी, और दांत की जबड़ों में बहुत दर्द थी। इसमें एक संगत में बताया था सत्संग में कि उसे मतलब अटैक, मतलब दिमागी का जो अटैक होता है उसकी होने के चांसेस। और मेरे को याद आ गया कि मेरे को भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो गुरुजी ने वो तो ठीक कर दिया है, लेकिन अभी मेरे को वो माइनर सी प्रॉब्लम है। मेरे को दर्द जो होता है तो मेरे को पता नहीं लगता कि मैंने क्या करना। ऊपर से मेरे जो हस्बैंड है वो भी ऐसे मेरी किसी बात को नहीं मानते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि ऐसे दिखावा करी हो, लेकिन ये तो मेरे दिल को पता है कि मैं किन समस्याओं से गुजरी हूँ। वो तो एक दर्द भरा इंसान ही बता सकता है जिसके अंदर दर्द हो। मेरे अंदर इतना दर्द छुपा है कि मैं किसी को नहीं बता सकती। मेरे माँ बाप भी नहीं है। उसी समय गुरु जी ने मेरा हाथ थामा। वो तो मुझे मेरी जिंदगी में एक प्रेरणा बनकर आए। और मैं क्या कहूँ, मैं इसी के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे को पता नहीं लगता कि मैं क्या बोल रही हूँ कभी भी। मेरा दिमाग ही बांध दिया था सबने। ये सोचने की शक्ति भी भूल चुकी थी। नहीं तो मैं इतनी तेज थी कि मैं कभी कोई चीज़ नहीं भूलती थी। मेरी ज़िंदगी तबाह करने पर छोड़ दिए। मैं गुरु जी से अरदास है कि हमारी जोड़ी जैसी है वैसी ही बनी रहे, और हमारा रिश्ता हमेशा जब तक मेरी सांस है हम दोनों कभी अलग ना नहीं हो, क्योंकि लोगों ने तो हमें अलग करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। अभी भी उनकी कोशिश जारी है। वो हमें अलग करना चाहते हैं। मेरे पति के लिए मेरा प्यार मैं समझ नहीं पाई कि कभी वो करते भी हैं कि नहीं करते। उनका अभी तक मेरे को कुछ समझ नहीं लगी है, क्योंकि उनको गुस्सा ही इतना है। कभी जाहिर नहीं करते हैं, ना मेरे साथ बैठते हैं थोड़ी देर, ना बात करते हैं। बस खाना पिया किया और बस चले। कभी बैठ कर दुख सुख किए ही नहीं मेरे साथ। मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ शादी को 20 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे को आज तक पता नहीं मेरा समय कैसे निकल गया। आदमी बाहर आर्मी में है वो। हमेशा छुट्टी आती तो हमारी लड़ाई ज़रूर होती थी, और हम थोड़ा कितने दिन बात भी नहीं करते थे। गुस्सा उनका सिर्फ घड़ी के लिए होता था, लेकिन वो बहुत खतरनाक होता। मरने मारने पर आ जाते थे। मेरे को मारते पीटते बहुत थे वो। लेकिन मैंने सहा, क्योंकि पिछला कोई ठिकाना नहीं था। मम्मी पापा थे, उनको भी मैं दुख में नहीं रखना चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें भी कभी नहीं बताया कि मुझे क्या दर्द है। मैं सहन करती रही, लेकिन आज जो मेरी स्थिति है ना, मैं मर सकती हूँ ना जी सकती हूँ। मेरा इतना हाल बुरा करती है लोगों ने। मैं तो भगवान से गुरु जी से ही अरदास है कि उन लोगों को कड़ा दंड दे। मैं जो जो से चिल्लाती भी हूँ। जब मेरे को गुस्सा आता है तो मेरे को पता है कौन है वो जो मेरा बुरा चाहते हैं, लेकिन मैं गुस्से से बोल भी देती हूँ। कितना कोई सहन करे, लेकिन अब नहीं मैं बोलूँगी। जो करना है वो मेरे गुरु जी करेंगे। मैंने उन पर छोड़ दी अपनी डोर। इतनी दुखी हूँ कि क्या बोलूँ। और तो मेरे को जीने की चाह भी नहीं रही है, ना किसी चीज़ की आस है। जय गुरु जी। इसी के साथ अपने
सत्संग को पूर्ण विराम देती हूँ। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरु जी आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता, आज को तो मैं मर ही जाती। लोगों ने तो ऐसा कर दिया था कि इसकी बुद्धि ना चले किसी चीज़ ना, मैं किसी से बात करती थी ना, बस सो ही रहना, ना किसी से बात करना। मेरे को बोलना भी बुरा लगता था, कोई बोले भी तो गुस्से से बोलना। मेरी आदत कुछ और थी पहले, मैं कभी किसी से हट कर जवाब भी नहीं देती, लेकिन इतना चिड़चिड़ापन हो गया था मेरा कि मैं क्या बताऊँ, किससे बात करूँ। बच्चे भी मेरे नहीं रह रखे थे, उन पर भी पता नहीं कैसा जादू किया था किसी ने कि वो भी मेरी बात नहीं सुनते थे, वो हंसते थे। मेरे को पता था कौन थे, मेरे को तो शुरू से पता था, लेकिन इतने नीचे गिर सकते हैं वो नहीं मेरे को पता था। इतनी हद, इतनी नफरत करते हैं मेरे को कि वो मेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे। उनको अलग करने की साजिश करती थी उन्होंने। पता तो मेरे को लगता, क्योंकि अपने बच्चों को खुद पता होता है कि कैसे होते हैं वो। बचपन में इतने बच्चे अच्छे थे ना मेरे, मेरी हर बात मानते थे, जहाँ मैं बोलती थी वहाँ रुक जाना। अब भी रुक जाते हैं, लेकिन गाली गुली देखकर डांटती हूँ तभी, ऐसे नहीं रुकते। फिर मेरे को थोड़ा प्यार से मनाना पड़ते हैं वो। लेकिन लड़की तो ऐसी ढीठ है ना, वो तो कहना नहीं मानती, उसके ऊपर तो पता नहीं क्या किया हुआ, मेरे को तो समझ नहीं आता। जितनी बड़ी होती जा रही है उसका दिमाग उतनी ज़िद्दी स्वभाव की है। मैं गुरु से यही अरदास है कि वो मेरी ज़िंदगी को खुशहाल बना दे और मैं हंसती रहूं। मैं तो हंसना ही भूल गई हूँ, नहीं तो मैं मस्त मलंग औरत थी। बोलता है कोई तो बोलते रहे। मेरे ससुराल वाले ऐसे हैं कि बोल बोल कर चिढ़ाते थे मेरे को कि ये दुखी रहे हमेशा और डिप्रेशन में चली जाए। उनकी बातें ऐसी होती थी कि मैं खुद नहीं समझ पाती कि है कैसे लोग, मैं किन के साथ मेरा पाला पड़ गया है। लेकिन मैंने अब बात करना भी छोड़ दिया उनसे। मेरे को दिल ही नहीं करता उनसे बात करने को कि मैं उनसे बात करूं कुछ। मैं तो जैसा अपने अपने कर्म होते हैं, मैं तो सोचती हूँ कर्म ही ऐसे होंगे तो मेरे को तो झेलना तो पड़ेगा ही। मैं बस चुप रहती हूँ, अपने सत्संग सुनती रहती हूँ, बस बिजी रहना अपने कामों में बस, और कुछ नहीं करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। चलिए संगत जी, अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी मोनिका। गुरु जी से मेरी जर्नी फिज़िकल फॉर्म में 2024 मार्च में हुई है, महाशिवरात्रि से कुछ दिन पहले। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हमें इस लायक समझने के लिए, अपनी संगत बनाने के लिए, अपनी बेटी बनाने के लिए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ऐसे ही हम पर अपनी परिचय बनाए रखिएगा। वैसे तो गुरुजी हर पल हर क्षण हर लम्हा भोले बाबा जी के रूप में मेरे साथ हमेशा से ही रहे हैं। ये बात मैंने अपने हर एक सत्संग में शेयर करी है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जितने भी गुरुजी के सत्संग सुने, चाहे वो बीमारी से रिलेटेड हो, चाहे वो बच्चे से रिलेटेड हो, हर चीज़ से रिलेटेड मुझे ऐसा फील हुआ है, हाँ जी ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, भोले बाबा जी के रूप में हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। संगत जी तभी कहते हैं कि हमें नहीं पता कि गुरुपा हमसे कब जुड़े हैं। जिस भी देवी देवता को हम मानते हैं, दिल से मानते हैं, भोले बाबा जी, जैसे मैं भोले बाबा जी को मानती हूँ, गुरु जी उनके रूप में हमेशा से ही हमारे साथ रहे हैं। उनकी हमने जितनी भी दिल से पूजा पाठ करी है, उस सब का फल है कि हमें गुरुपा मिले। हमारे देवी देवता जिसकी भी हमने दिल से पूजा की है, उन्होंने खुश होकर हमें गुरुजी के चरणों में डाला है, या कहिए गुरुजी को हमारे लिए भेजा है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। ये प्यारा सा सत्संग मेरे 2.5 साल के बेटे के लिए है। वैसे तो मैं पहले भी बहुत सारे सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि जब से उसके होने का पता चला था तब से ही काफ़ी प्रॉब्लम्स थी उसकी रिपोर्ट्स में, और मैंने बहुत सारे ऐसे सत्संग भी सुने हैं जिसके थ्रू मुझे कंफर्म हुआ है गुरुपा की ब्लेसिंग हमेशा से ही मेरे बच्चे के साथ रही है। जब से उसके होने का पता चला है, बहुत दिक्कत थी उसकी रिपोर्ट्स में, गुरुपा ने वो सब चीज़ों को
उस सब बीमारियों को, उन सब प्रॉब्लम्स को मेरे बच्चे से दूर करके आज मेरे बच्चे को इतना बड़ा कर दिया है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मतलब इतना बड़ा कर दिया है कि आज उसका फर्स्ट डे था। गुरुपा की कृपा से, भोले बाबा जी की कृपा से वो आज क्रच गया अपनी दादी के साथ, वहाँ रहा। गुरुपा शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे भोले बाबा जी, ये दिन दिखाने के लिए कि आपने उसको इतना ब्लेस किया। मतलब रिपोर्ट्स इतनी ख़राब थी कि कई डॉक्टर्स ने तो बोला था 50% बचेगा। कुछ मतलब बहुत हमें कुछ बड़े जॉइंट फैमिली, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उसके बावजूद गुरुपा ने उसको मेरी गोद में डाल दिया और आज वो क्रच जाने के लिए रेडी हो गया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। दिल से शुक्राना गुरुपा। उसको आगे भी ऐसी तरक्की दीजिएगा, ऐसे उसके साथ रहिएगा, अंग संग रहिएगा। तो गुरुपा की कृपा से आज वो क्रच जाना शुरू हो गया है। हे मेरे परमात्मा, अपना प्यार, अपना साथ, अपना विश्वास उसके हमेशा अंग संग ऐसे ही रहिएगा, उसको सही राह पे चलाइएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतना प्यारा दिन दिखाने के लिए। और दूसरा प्यारा सा सत्संग वो भी बेटे से रिलेटेड है कि कुछ दिन पहले ना उसकी जीभ में काफ़ी जैसे पता नहीं डस्ट इकट्ठा हो गई थी क्या थी, इतना मोटे मोटे जैसे कुछ जमने लग गया था। तो मैं इतनी परेशान हो गई थी कि जहाँ तक मैं साफ़ कर सकती थी वो तो मैं साफ़ कर रही थी अंदर, पर वो अंदर, अब छोटा बच्चा है, अंदर तक तो हम भी नहीं मुँह के हाथ डाल सकते, हमें वॉमिटिंग आने को होती है, वो तो छोटा है कैसे करेगा। मैं इसी सोच में मैंने कहा गुरु भाई ये क्या हो गया, कोई वैसी प्रॉब्लम तो नहीं हो ही जाती है बच्चे की टेंशन, अब कैसे साफ़ होएगी। फिर वो खाना भी नहीं ढंग से खा रहा था, तो मुझे लग रहा था कि क्या पता इसकी जीभ में ये हो रखा है तब नहीं खा रहा होगा। तो मैंने कल अचानक ही देखा उसकी जीभ बिल्कुल साफ़, क्लियर। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने एक ही दिन में उसको जीभ को, जब से मैंने देखा तब उसके एक दिन बाद ही आपने उसको ठीक कर दी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और फिर मैं रात को उसकी मौसी को बता रही थी फ़ोन पे, मेरे दिमाग में बात क्लिक हुई। मैंने कहा पता नहीं कैसे एकदम से साफ़ हो गई, कितनी गंदी सी हो रखी थी और इतने एकदम पता नहीं कैसे साफ़ हुई। तभी मेरे दिमाग में गुरुपा ने ठोर डाल दी कि आजकल हमारे गांव से, उत्तराखंड से ना वो आ रही है, किन्नू टाइप होते हैं, माल्टा बोलते हैं उन्हें, पता नहीं आपके यहाँ होता होगा कि नहीं होता होगा। तो वो खाए उसने ना परसों, वो इतने खट्टे होते हैं ना, खट्टे मीठे। तो गुरुपा ने एकदम मेरे दिमाग में डाला। मैंने कहा अच्छा उसने ये खाया ना, क्योंकि खटास इन चीज़ों को साफ़ करती है। तभी कहूँ मैं कि इतने क्लियर पता नहीं कैसे हो गया। और वो इतना छोटा सा बच्चा, उसने इतना खट्टा पूरा पूरा खा रहा था वो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इससे उसकी जीभ बिल्कुल क्लियर हो गई और खाना भी खाने लग गया है आपकी कृपा से। बीच में उसने खाना छोड़ दिया था, उसके गले में छाले छुले, बीमार हुआ तो शायद दवाई से गर्म हो गया था, इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि उसने खाना भी शुरू कर दिया। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। हमारे बच्चे पर ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखेगा। आपके इतने पॉजिटिव मैसेज आते हैं तो हमेशा बच्चे की टेंशन में रहती है। बच्चे की टेंशन मत किया कर, मैं हूँ उसके साथ हमेशा, उसका भविष्य उज्जवल है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप सब जानते हो, फिर भी आप कोई नहीं बिलीव कर सकता कि आपके इतने पॉजिटिव सत्संग से इतनी आशा बढ़ जाती है, जीने की इच्छा बढ़ने लगी है जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हो। नहीं तो मैं इतनी इमोशनल थी जॉइंट फैमिली में रह के, मतलब इतनी डीमोटिवेट हो गई थी कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, इससे अच्छा तो मरना ही अच्छा है। परिवार से अलग होना नहीं चाहते और परिवार में रहना मुश्किल है जॉइंट फैमिली में। मतलब इतनी डिस्टर्ब हो गए थे एक टाइम पे कि यार कैसे। पर जब से गुरुपा आप आए हो, आपने थामा है, मैं दोबारा से वैसी हंसती खेलती अच्छी हो गई हूँ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख वार शुक्राना गुरुपा। बस सबसे बड़ा शुक्राना इसलिए ही है कि आपने हमें चुना। हमारे बुरे कर्मों, जितना भी हमने दुख देखा, शायद वो हमारे अति बुरे कर्म थे और उन सब हमारे बुरे कर्मों को आपने इतने प्यार से अपने साथ से उसको दूर किया है, ख़त्म किया है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपका एक पॉजिटिव मैसेज ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए काफ़ी है। ज़िंदगी के दुखों के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। उन तमाम लोगों का बहुत शुक्राना जिन्होंने हमें हर्ट किया, अननेसेसरी इंसल्ट, नीचे कराने की, झूठ, ये सब
किए, उनका भी शुक्राना कि अगर वो हमारी ज़िंदगी में ना आते तो शायद हम आप हमें ना मिलते। हाँ, आप हमें ना मिलते, क्योंकि कहते हैं ना गुरु, इन चीज़ों पे हम गुरु जी, मैं रिस्पेक्ट सबकी करती हूँ पर मैं भोले बाबा जी के अलावा किसी के बारे में सोच नहीं सकती थी। और किसी गुरु को तो हम लोगों के साइड तो मानते ही नहीं है गुरुओं को, पर उसके बावजूद आपने हमें चुना, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जित फड़दना साटिबा, जित फड़दना साटिबा, असा रुल जाना से, सानू किते न मिलदी था, असा रुल जाना से। आपने हमें हमारा हाथ पकड़कर हमें दोबारा से सही रास्ते में चलाया, नहीं तो बीच में टाइम ऐसा आ गया था कि जैसे लोग हैं हम भी वैसे ही बन जाएंगे, मत नहीं मरना किसी के पीछे। मतलब ऐसा हो गया था कि अब जो जैसा हमारे साथ करेगा हमने वैसे ही करना है उनके साथ भी। पर उससे पहले आपने हाथ पकड़ लिया और हमें सिखाया कि नहीं, तुम अपने कर्म खराब मत करो किसी के पीछे, उनको मैं देखूँगा, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मौज करो। सबसे पहला मैसेज तो गुरुपा का यही आता है कि पैसों की चिंता मत कर, घुमा फिरा कर, ऐश किया कर, तेरे खजाने भरे रहेंगे। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, कितनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स के लिए, बच्चों को ब्लेस करने के लिए, पति परमेश्वर को ब्लेस करने के लिए, मुझे ठीक करने के लिए, मुझे ब्लेस करने के लिए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल हर क्षण हर लम्हा हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, पति परमेश्वर के साथ रहने के लिए शुक्राना। बस आप हमारे साथ ऐसे ही रहिएगा, हंसते खेलते रहिएगा, हमसे अच्छे कर्म कराइएगा, ताकि आपको हमारे बुरे कर्म अपने ऊपर ना लेना पड़े और हम अपनी बची कुची ज़िंदगी आपके प्यार की छतर छाया में खुशी खुशी रह सके, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे शुक्राना कराते रहिएगा, सही राह पर चलाते रहिएगा। लव यू लव यू लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा। इतना प्यार ज़िंदगी में किसी ने नहीं दिया, इतना साथ ज़िंदगी में किसी ने नहीं दिया जितना आप देते हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बस सही रास्ते पे चले, आपके प्यार की कदर करे, आपके प्यार का नाम ऊपर करे, बस ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने हमेशा सब कुछ दिया है, बस हम आपके दिखाए रास्ते पे चले, ऐसा ही आशीर्वाद हम पर भी बनाए रखिएगा। लव यू सो मच मेरे भोले बाबा जी। शिव महाशिव, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी आंटी जी को प्यारा प्यारा शुक्राना, थैंक यू सो मच, आप हमारे सत्संग शेयर कर देते हो। सारी साथ संगत जी को भी जय गुरु जी आंटी जी। चलिए संगत जी, अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, लाख लाख वारी, करोड़ों वारी शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के बहुत मैसेज आ रहे हैं कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। आज का दिन सोमवार है और 11 तारीख है, गुरु जी का वार है, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी मेरे बेटे पे बहुत मुसीबत बता रहे हैं कि बेटी तेरे बेटे पे मुसीबत है, वो गलत संगत में पड़ रहा है। तो गुरुपा, आपका ही वो बच्चा है, आप ही उसे देखोगे, आप ही उसे सुधारोगे और आप ही उसका ध्यान रखोगे। गुरुपा, आप तो जानते हो संगत जी, आजकल के बच्चे कहना कहाँ मानते हैं। अभी मेरा बेटा 12 साल का ही है, पर वो कहना नहीं मानता संगत जी। तो गुरु जी के चरणों में बस मेरी इतनी सी विनती है गुरुपा, मेरे बच्चों को दोनों को, एक बेटी एक बेटा, और मेरे हस्बैंड अंकल और मुझे और मेरे भाइयों को, और गुरुपा सारी संगत को ही आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना, ब्लेस करना गुरुपा। सबके जीवन में खुशियाँ रहें, सबको सुख शांति घर में, अच्छा स्वास्थ्य, हेल्थ वेल्थ सब कुछ देना मेरे गुरुपा। और गुरुपा के मैसेज आते हैं, बेटा मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ तो तू मुझे बुला नहीं रही अंदर। तो गुरुपा ये आपका ही घर है,
आपको मुझे मेरे से परमिशन लेने की या पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे गुरुपा। आप मेरे इस घर में छोटे से में 24 घंटे अपना आशीर्वाद दो, अपनी प्रजा अपना फील कराओ कि आप मेरे पास हो हमेशा गुरुपा। और गुरुपा के नेगेटिविटी के भी बहुत मतलब मैसेज आ रहे थे संगत जी कि काला जादू कराया किसी ने, काला जादू कराया है किसी तेरे परिवार वालों ने, ससुराल पक्ष के लोगों ने। तो गुरुपा मुझे नहीं पता ये लोग क्यों काला जादू कराते हैं, ससुराल वाले हों या कोई पास पड़ोसी हों, कोई भी गुरुपा। तो आप इनको सद्बुद्धि दो, ये ऐसे काम ना करें और मेरे परिवार को आप ही इनसे बचाओ और अपना आशीर्वाद बनाओ गुरुपा। और गुरुपा के मैसेज आ रहे थे, बेटी मैं तुझे घर और गाड़ी सब कुछ दूंगा। तो गुरुपा जैसी आपकी मर्जी है, आपको जो ठीक लगे वो आप देना। आपकी बच्ची तो आपसे अपनी हेल्थ ही मांगती है, क्योंकि मुझे संगत जी हेल्थ बहुत प्रॉब्लम है। मेरे 5-6 महीने से मुंह के अंदर पता नहीं क्या हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा। और मेरे एक सर में गांठ सी भी है, अब वो ठीक नहीं हो रही। तो गुरुपा मैं आपसे रोज़ अरदास करती हूँ कि मेरे गुरुजी मेरी गांठ जो सर में हो रही है बालों में, और जो मेरे मुंह में इन्फेक्शन है पता नहीं क्या है 4-5 महीनों से, वो ठीक नहीं हो रहा। तो उसको ठीक कर दो गुरुजी और मेरी हेल्थ ठीक करो, और मेरे हस्बैंड अंकल की भी हेल्थ सही करो, उनकी हेल्थ भी सही नहीं रहती। तो गुरुपा आप कहते हो ना आप मेरे से मांगो मत, मुझे मानो, पर गुरुपा हम तो आपके बच्चे हैं, आपकी बेटी हूँ, मेरे कोई पापा मम्मी कोई भी नहीं है। मैं तो आपसे ही मांगती हूँ गुरुपा। और संगत जी मेरा गुरुजी से पहले भी 3-4 महीने पहले ही कनेक्शन जुड़ा है यूट्यूब के माध्यम से। मैं गुरुजी को ना, मेरे पास कोई गुरुजी का स्वरूप है, पर मेरे को इतना विश्वास है, गुरुजी के मैसेज भी आते हैं कि बेटा तुझे मेरा स्वरूप चाहिए ना, मैं तुझे बड़ी मंदिर जल्दी ही बुलाऊंगा। तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। वैसे तो मेरा मायका दिल्ली में ही है, पर मैं रहती यहाँ लुधियाना में हूँ, मतलब मेरी ससुराल लुधियाना में है। तो जब भी मैं दिल्ली गई गुरुपा, मैं बहुत जाने की कोशिश करूँगी। छतरपुर मंदिर कहाँ है मुझे कुछ पता नहीं है अभी, और संगत जी मैं जाने की कोशिश पक्का करूँगी और अपने गुरुपा का स्वरूप लेके आऊँगी। फिर मैं, मेरे मन में बहुत होता है कि मैं भी जल प्रसाद पीऊँ, चंदन टीका लगाऊँ गुरुपा का, स्वरूप गुरुपा का घर में रखूँ। पर संगत जी अभी ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो मैं अपने गुरुपा को ये अरदास लगाई है कि गुरुपा जल्दी से जल्दी ये सब पॉसिबल करो आप। मैं भी अपनी मतलब टीका लगाऊँ अपनी सारी शरीर की बीमारियां। संगत जी मैंने सत्संग में ही सुना है कि चंदन टीके से सारी बीमारियां दूर होती हैं, जल प्रसाद खाने से दवाइयाँ, मतलब जैसे हम दवाइयाँ लेते हैं गुरुपा, मैं दवाइयाँ भी रोज़ लेती हूँ। मैं शुगर की पेशेंट हूँ, तो मैं गुरुपा ही जाने मेरी शुगर भी वही सब सही करेंगे गुरुपा। बस मेरी यही गुरुपा के चरणों में अर्जी है गुरुपा, मेरी हेल्थ जल्दी ठीक कर दो। और जैसे मैं सफ़र भी नहीं कर पाती, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो गुरुपा मेरी तबीयत भी सही रखना जब मैं कहीं जाऊँ आऊँ। और मैंने आपसे करवा चौथ पे और होली अष्टमी में पे बोला था गुरुपा कि मेरी तबीयत सही रखना, मैं फास्ट रख सकूं। तो मेरी गुरुपा ने बिल्कुल मेरी तबीयत सही रखी, करवा चौथ वाले दिन भी और होली अष्टमी वाले दिन भी। कुछ भी मुझे वीकनेस चक्कर कुछ नहीं आए। संगत जी गुरुपा में बहुत ज़्यादा शक्ति है, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये सत्संग मेरा लंबा ना हो जाए संगत जी, और सॉरी मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरे से कुछ गलत बोला गया हो और मैंने गुरु जी का मंत्र जाप नहीं करा संगत जी, तो मैं अब कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम
वार शुक्राना मेरे गुरु का। अंकल जी या आंटी जी, आप जो कोई भी हो, प्लीज़ 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 ये मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देना। मैंने एक चैनल पे और करा था, उन्होंने अभी तक शेयर ही नहीं करे 3-4 सत्संग। ये मेरा 7वां सत्संग है, पर इस चैनल पे मैंने फर्स्ट बार ही शेयर करा है। तो संगत जी आप प्लीज़, अंकल जी या आंटी जी, प्लीज़ आप शेयर कर देना और ग्रुप आप पे भी अपनी कृपा बनाए रखें। आप इतनी अच्छी सेवा करते हो, सबके सत्संग शेयर करते हो, तो संगत जी मेरा भी कर देना प्लीज़। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी। चलिए संगत जी, अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इसे मैं मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरा छोटा बेटा हमारी सिटी से बाहर पड़ता है, काफ़ी दूर है, और उसने एग्ज़ाम देने के लिए जाना था, पर उसके रहने का कोई इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। और गुरुजी से हमने अरदास लगाई। मेरा बेटा भी गुरुजी से जुड़ा हुआ है, पता नहीं कितना मंत्र जाप करता है कि नहीं करता है, पर वो मानता है गुरुजी को, और मुझे बहुत बार बताता भी है कि मैंने बटरफ्लाई देखी, मम्मा देखो बटरफ्लाई। और जैसे हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, वो भी गुरुजी की संगत है, और मैं जानती हूँ कि गुरुजी उसे बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी हम सबकी रक्षा कर रहे हैं, और मैं बहुत डरी हुई थी उसको लेकर के वो जाएगा तो कुछ उसके वहाँ पे फ्रेंड्स हैं जो अब वो फ्रेंड्स नहीं रहे हैं। जैसे ही बच्चे वहाँ से निकलते हैं तो पीठ के पीछे लोग निंदा बुराइयाँ करनी शुरू कर देते हैं, और कुछ पैसे को लेकर भी कुछ झगड़ा चल रहा था। तो गुरुजी ने एक एक करके बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट कराई हैं। जो बच्चा था जिससे वो डर रहा था, उसका फ़ोन आया तो मेरे बड़े बेटे ने उससे बात की, जबकि वो करना नहीं चाह रहा था, पर उसने फिर उसको बोला कि मेरे भाई के साथ ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, एंड क्या प्रॉब्लम है उसने सारी क्लियर की। ऐसे लग रहा था गुरुजी ही उससे ये सब करा रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा था, ऐसा ही था। गुरुजी ने उसके थ्रू बातें बहुत सारी क्लियर करवाई, एंड अब वो किसी बच्चे के साथ कंपटीशन जीत गया था। कोई उसकी फ्रेंड थी, और वो लोग दोनों कंपटीशन में होके आए, और उससे उसका बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। साथ ही गुरुजी ने उसके मन में ये भाव डाला कि इसी से पूछो तुम्हारे रहने का इंतज़ाम कैसे होगा, और उस लड़की ने खुद ही ऑफ़र कर दिया। अब उसके पास रहने की जगह हो गई है, और हम चिंता मुक्त हो गए हैं। गुरुजी ने इतनी हमारे ऊपर दया की। गुरुजी ही कर सकते हैं, हमारे तो बस से बाहर था। हम सोच रहे थे कहीं होटल में या कहीं ओयो रूम्स वगैरह लेने पड़ेंगे। गुरुजी बख्शनहार हैं। गुरुजी के ऊपर जब छोड़ दो, सरेंडर कर दो, तो गुरुजी अपने आप उसका हल निकालते हैं, अपने आप चीज़ें ठीक करते हैं। गुरु पाक अनंतम 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 शुक्राना। मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट हूँ, और मेरे बच्चे भी मेरे जैसे ही कुछ हैं। हम सब गुरुपा के बच्चे हैं। अब तो गुरुपा ही मैंने तो गुरुपा को बोल दिया है, समर्पित कर दिया अपने आप को, और रोज़ कहती हूँ कि गुरुपा मेरी इंद्रियों पर आपका कंट्रोल है। गुरुपा मुझे धीरे धीरे ठीक करते जा रहे हैं, मेरा भांडा साफ़ कर रहे हैं, मुझे अंदर से क्लीन कर रहे हैं। मुझे बहुत चीज़ों का एहसास हो रहा है जो मुझे पहले कभी नहीं होता था। मैं गुरुजी से
जुड़ती जा रही हूँ और मुझे बहुत सारी चीज़ों का एहसास हो रहा है। मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं, जवाब भी दे देती थी लोगों को। गुरुपा का मैसेज आ रहा था, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है। हाँ, हम इंसान सोचते हैं कि हमारी बुद्धि बहुत तेज़ है और हम तो देखो इनको लग रहा है कि हमें समझ नहीं आ रही इनकी बात, हम भी इनको जवाब देंगे, ऐसे ऐसे हम सोचते रहते हैं हमेशा। और कई बार हमारे जवाब देने से बातें और बिगड़ जाती हैं। ये गुरुपा के साथ अपना कनेक्शन महसूस होने के बाद ही समझ में आया। गुरुपा तो हमेशा हमारे साथ थे, पर हमें समझ नहीं आता था कि कैसे बिहेव करना चाहिए। सोशल स्किल्स तो नील थे मेरे अंदर बिल्कुल ही। गुरुपा के साथ रह रह के, गुरुपा के समक्ष बैठ बैठ के, गुरुपा के चरणों से लग लग के अब बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। और गुरुपा मैसेज देते रहते हैं कि तू रो मत, और मैं जिन लोगों को तेरी ज़िंदगी से अलग कर रहा हूँ, तेरे जीवन से अलग कर रहा हूँ, तुझसे अलग कर रहा हूँ, वो तेरे लिए अच्छे नहीं हैं। और मैं देखती हूँ जिनको मैं बहुत अच्छी अपनी सहेली मानती हूँ और समझती हूँ और जिनके बहुत क्लोज चली जाती हूँ, उनके चेहरे, उनकी बातें सुन सुन के अब मुझे इतनी सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि ये वो मेरे हित में नहीं है। ये जो बातें करते हैं, ये जो बातें मेरे से सुनते हैं या मेरे बारे में सोचते हैं, मुझे जज करते हैं, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा तो नहीं सोचते हैं, इतना तो मुझे समझ में आ गया है, क्योंकि उनके भी आगे जो दोस्त हैं वो भी मुझे इन नज़रों से देखते हैं जैसे मैं ठीक नहीं हूँ। ठीक है, मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स तो हैं ही, मुझे पता है, पर अगर ना उनके बारे में बोला जाए किसी से तो बेटर है। ना डिस्कस किया जाए किसी से, अपने अंदर रखा जाए, गुरुपा से ही बात की जाए, गुरुपा से ही सॉल्यूशंस लिए जाए। ये संसार हमारा नहीं है, कोई हमारा नहीं है गुरुपा के अलावा, ये मुझे अब समझ में आ गया है। बस गुरुपा का हाथ पकड़ के रखे, गुरुपा अपना हाथ हमारे सिर पे हमेशा बना के रखिए। गुरुपा हमें प्लीज़ कभी अकेला मत छोड़िए। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, आपने हमें अपनी मुट्ठी भर संगत में चुना। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। हमारे से उन लोगों को अलग करने के लिए शुक्राना जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, और हमें ये समझ देने के लिए शुक्राना कि हमें वो स्ट्रेंथ देने के लिए शुक्राना कि हम उनको मिस ना करें अपनी लाइफ में, और हमें ये समझ आ जाए कि ये हमारे लिए अच्छे नहीं थे, इसलिए गुरुपा ने उन्हें हमारी ज़िंदगी से अलग कर दिया। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्यारा और ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विश्राम करते हैं अपने गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।